Hello everyone. So we know that PFRDA Grade A Phase 1 exam is approaching. It's on 6th of September. And many students who are preparing for this examination, they are very much confused about the fact that whether their preparation is up to mark or not. So in this video, we are going to talk about all these things. I prepared a small checklist for you, a very small checklist, 3 points है उसमें, but that checklist is going to be very important, especially at this last moment. Fine, just 2 weeks before the exam, and it is going to be very helpful for those aspirants who have already started their preparation and are going to appear for PFRDA grade A examination, this phase 1. But before we discuss all these things, a small announcement. We know that syllabus play a very important role regarding the preparation for any competitive exam, including PFRDA grade A. So if you want to download the decoded version of the syllabus, where the syllabus has been decoded in a subject wise manner, so what you can do, you can go to the description box, click over the link, and from there you can download this document. Fine, so it is free of cost. You can definitely download it from the link available in the description box. Now moving forward, let us talk about the checklist. And the first component of this checklist is the completion of most important topics. Let me tell you that only and only around, I would say, 2 weeks are left for the examination. So it is very important that you must focus on the priority areas. I'm not saying कि बाकी के areas को मत पढ़ो, वो भी पढ़ने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके दिमाग में हाई प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एंड जहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई है, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए वो आप किसी कीमत पे गलत ना करो, जो कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में ऑफ कोर्स मदद करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कैसे आप डिसाइड करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो ऑन अवर टेलीग्राम चैनल. ये वीडियो कल ही अपलोडेड हुई है. सो यू कैन सी इट ओवर हियर दैट PFRDA ग्रेड 2025 फेज 1 पेपर 1 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स. तो यहाँ से भी आपको एक बहुत आइडिया मिल सकता है कि यार कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जो मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत है. तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, एंड उसके बाद प्लीज डू नॉट इग्नोर, आई वुड से, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चेक लिस्ट, विच इज द डेली मॉक टेस्ट. ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे लगता है कि सेक्शनल जो मॉक टेस्ट का टाइम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. तो वो आप तब देते हो सेक्शनल मॉक टेस्ट जब आप उन कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू करते हो. मुझे लगता है कि अभी तक कुछ ना कुछ तैयारी आपने कर ही ली होगी अच्छी खासी. ये एक ऐसा टाइम है जब आपकी प्रिपरेशन एट अराउंड पीक होनी चाहिए, राइट? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट. ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देना बुरा ही नहीं है, दे सकते हो अगर टाइम है, बट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो फुल लेंथ टेस्ट होनी चाहिए. ट्राई टू गिव मॉक. अगर डेली भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, अगर डेली देने का टाइम नहीं है, मैं बोलूंगा कम से कम ऑल्टरनेटिव डेज में कोशिश करो देने की. अगर वो भी नहीं कर सकते हो, कम से कम हफ्ते में 2 मॉक्स तो दो. और मॉक सिर्फ देना नहीं है, यू जस्ट डोंट हैव टू गिव देम कैजुअली, यू हैव टू एनालाइज ऑल्सो. बाय एनालिसिस आई मीन टू से दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, दैट व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग. इज इट अ सिली मिस्टेक? Is it because of some kind of conceptual error? Is it because of some kind of misunderstanding? Or maybe the source from which you are reading that information, that source is not reliable? N number of factors can be there, but you have to identify that what is the fault, why you have marked any answer as incorrect, right? So once you are done with the reason, read the explanation also. Along with the explanation, I would suggest you to that if you are marking any question incorrect from a specific type of topic, go back to that topic, to the original source, I mean whatever source you are following, and read that entire topic for once. Fine. So this way you will be able to realize, I would say revise it, and also apart from that you will be getting better command over that topic, over that component, right? So in this way you can solve this daily mock test. तो एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में, आई वुड से मॉक टेस्ट देने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे ज़्यादा लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग, all of these, I would say, all this practice is going to be worthy and you won't regret at the end, right? So it is very important that you are giving daily mock test and you are analyzing it in a केयरफुल मैनर. फाइन. सो ये इन डेप्थ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है रिवीजन. बाय रिवीजन आई मीन टू से दैट मैं उस रिवीजन की बात नहीं कर रहा जो आप लोग करते हो, बहुत सारे लोग, जिसे हम पैसिव रिवीजन कहते हैं. पैसिव रिवीजन क्या होता है कि बुक खोल ली एंड आफ्टर ओपनिंग द बुक यू आर जस्ट रीडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स एंड कंसेप्ट्स मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर. वो नहीं रिवीजन होती है. वो तो होता है कि आप उस टॉपिक को अभी भी पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि यू आर नॉट एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली. व्हाट डू आई मीन बाय एक्टिव रिवीजन इज दैट द बुक इज क्लोज्ड, यू हैव टू क्लोज द बुक, या फिर उसको उल्टा करके रख दो. ठीक है, वो चैप्टर खोल लो एंड बुक को फ्लिप करके रख दो अपने टेबल पे, एंड अब आपको रिकॉल करना है. या तो आप अपने सामने क्या करो, इंडेक्स लिख लो.
इंडेक्स के पॉइंट लिख लो दैट दिस इज इंडेक्स टॉपिक 1, इंडेक्स टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5। इसे एक रफ पेज पे लिख लो। अब बुक को कर लो बंद, और ये जो आपने इंडेक्स के टॉपिक नोट डाउन कर लिए इसको खुद रिकॉल करते जाओ कि यार टॉपिक 1 में ये होता है। फॉर एग्जांपल लेटर से अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फाइनेंस पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर हो सकता है, लेटर से आप डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ रहे हो, तो आप देखो टॉपिक 1 इज लाइक दिस इज रेगुलेटरी बॉडी 1, दिस इज द फंक्शन, ओके। पॉइंट नंबर 1 इज द फंक्शन। देन उसकी हिस्ट्री के बारे में, दैट विद विच एक्ट दैट स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी वाज फॉर्म्ड, इन विच ईयर इट वाज फॉर्म्ड, वाज देयर अ स्पेसिफिक टाइप रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी थ्रू विच that regulatory body was formed. So in this way you have to recall different kind of parameters that you have already studied, and now you are recalling it, or I should say you are revising it through recalling in an active manner. और उसके बाद क्या होगा, मान लो आप किसी टॉपिक पे अटक गए, मान लो आप रेगुलेटरी बॉडीज का चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको ये याद नहीं आ रहा कि यार विच वाज द कमिटी दैट बेसिकली रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्थ, तो वो कौन सी कमेटी थी, आपको कमेटी का नाम भूल गया, तो इमीडिएटली ओपन द बुक, अब जो आपने बुक बंद करके रखी थी उसे खोलो और वहां पर देखो कि ओके दिस वाज द नेम ऑफ द कमेटी, और उसे येलो कलर से हाईलाइट कर दो कि मुझे रिवीजन के टाइम भूल गया था। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस साइकिल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड आई वुड से दैट इमीडिएटली यू विल रियलाइज दैट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपकी जो उस टॉपिक पे कमांड है, जो उस कंपोनेंट पे कमांड है, वो बेहतर होती जा रही है, एंड आई वुड से यू आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड इससे आपको मेंटल पुश एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा आपका इफ यू आर एबल टू फॉलो इट। तो ये मेरा कंटिन्यूस रिवीजन से मतलब है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, मैं बोलूंगा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। रिवाइज तब तक करो जब तक आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि यार इस टॉपिक में से अगर मुझसे कुछ पूछ लिया जाए, आई एम इन अ गुड पोजीशन टू आंसर इट एंड आई कैन ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर आपने ऑफ कोर्स मल्टीपल रिवीजन किया तो आपके जो मॉक टेस्ट में जो एरर हो रही है, जो क्वेश्चन आप इनकरेक्टली मार्क कर रहे हो, ये एरर कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे, ये आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो जाएगी, जो नेट स्कोर है वो इंप्रूव होता जाएगा। सो वही हमें चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सो दैट बेसिकली यू कैन क्लियर द कट ऑफ एंड यू कैन रीच फेज 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, मॉक टेस्ट कौन से देने हैं और कितने देने ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, किस इंटेंसिटी से देने हैं, कैसे देने हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों करनी है और कैसे करनी है इसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो ये 3 चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसमें से कोई चीज मिस कर रहे हो तो इसका मतलब सॉरी टू से बट आपकी प्रिपरेशन कहने की अप टू मार्क नहीं है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जस्ट बिकॉज अभी अप टू मार्क नहीं है तो आगे इंप्रूव नहीं हो सकती। आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो एंड विद अ पॉजिटिव एंड आई वुड से a healthy attitude, please I would say try to fix these gaps, right? तो ताकि आपकी different components पे अच्छी command है, and at the end of the day you feel confident about the fact that yes I am prepared for this exam, and this day is for me, fine, so this is the day I have been waiting for and I'm going to perform the best. So that is the confidence that you would be getting once you get a good grip over these parameters. So I hope it is clear to you. Now before I end the session, let me also tell you that how EduTap can help you as a part of the preparation. So basically, if you're somebody who is preparing for, let us say, PFRDA grade A, right? So we are offering these type of courses, and you can see single courses also there, and apart from that the combo course is also there, because we know that by the end of this week I would say there's a huge probability that IFSA notification could be announced, right? So there's a huge probability that this exam is going to happen. और PFRD और IFSA के जो syllabus है उससे बहुत ज़्यादा overlapping areas भी है, तो for that purpose you can look into this combo offer also. I mean the combo course also. If it suits you, then only go for it. If you have some other option, then definitely you can go for that. So whatever suits you, I would say the objective is that your preparation should not be compromised at any cost, and I want you to give your best. So best of luck for your examination, and apart from that, if you have any other query, any other doubt, please do not hesitate to write it in the comment box. So thank you so much and all the best.